Okay, so I think I'm audible to all of you. And how are you? And hopefully you all are doing well. So in this video, I'm going to talk about CDS 2024 and NDA 2024. We know that these examinations, these two examinations are very important for those who are aspiring to become officer in armed forces. And if you see these examinations, UPSC made huge changes. If I talk about CDS 1 2024, if I talk about NDA 1 2024, in both of these paper, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, बट आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट the science here, okay, which I teach. Okay, later on I'll discuss about these things now, but the main point that I'm here, why I'm making this video, just to tell you that what I give to my students in terms of the material, how the questions come in the CDX and in the examination, and how my notes, my class tests, and whatever we discuss in our classrooms, how it is helpful for all of you. Okay, so let us, these are some screenshots from recent papers CDS 2024. If you have gave this examination, or if you haven't gave this examination, just I would suggest must go through this paper and एक बार जरूर देखो कि यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो टू गिव एनी ऑफ दिस सीडीएस एनडीए अटेम्प्ट. ओके, बिकॉज यूपीएससी इज चेंजिंग द पैटर्न. कट ऑफ डेफिनेटली देयर विल बी चेंजेस इन कट ऑफ आल्सो, बिकॉज पेपर इट इज नॉट, वी कैन से इट इज मोर ऑफ अ इजियर साइड, बट हाँ, इट इज डूएबल फॉर दोज व्हिच who ultimately know that what to do and how to calm your nerves in the examination also. Let's begin with this. Okay, later on we'll discuss all of the other things also. Just these questions and these screenshots are from my notes, from my test series. We can you can see all of these things, whether it is CDS, NDA. We'll discuss some questions, and I must tell you, I must give you insight that how these notes are helpful. Will you go directly, is it good to directly open the NCERTs and you start reading the chapters from there, and you find and you feel that you are able to do? No, see, NCERTs are good, I must say, but how to read those NCERTs, you must know that thing. And from my side, what I can do, I can make those NCERTs simple for you. Okay, I do the work from you, from your side to read those NCERT, and तुम्हारे लिए काम मैं आसान करूंगा. ठीक है, now let's see these questions. फिर उसके बाद we'll discuss a lot of things. मुझे बहुत कुछ चीजें इसमें बतानी है तुम्हें. ठीक है, कैसे अप्रोच रखना है एग्जाम में, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो वो चीजें मेरे को इसमें बतानी है. ओके, so let's see which one of the following is not a micronutrient. See, these are the notes में से सीधा माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रही है. वो न्यूट्रिएंट्स मेंशन है. ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्लास 9th लास्ट चैप्टर आप देखोगे ना, that in that chapter environment का चैप्टर है कुछ, वो उसके अंदर मेंशन है ये न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. यू कैन क्लियरली एलिमिनेट, ये नोट्स का पार्ट है. एनसीईआरटीज की मैंने आप ये समझो कि मेरे नोट्स इस तरीके से हैं, दोज नोट्स आर एन समरी ऑफ एनसीईआरटी. मींस इफ यू आर रीडिंग दोज नोट्स, दैट मींस यू आर रीडिंग अ समरी ऑफ एनसीईआरटी, एंड समरी डजंट मीन वी कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग. आई पिक्ड अप दोज लाइंस टू समराइज फॉर यू, बिकॉज इफ यू ओपन एनसीईआरटीज ना, एनसीईआरटीज में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ना भी है, जो आपको छोड़ना भी है. क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, दैट ओनली कैन टेल यू जिसने उसको डीप में पढ़ा होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस ओनली, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं. ठीक है, नाउ in which of the following colloids is a dispersing medium? See, this is, ये आपका मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला हुआ है, एंड ये आप क्वेश्चन पढ़ लो स्टेटमेंट 2. अब जिसने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जिसने क्वेश्चन में से समझा होगा, तो अल्टीमेटली उसका तो गलत नहीं होना. क्यों? क्योंकि उसे ये तो पता है फॉर्म जो है वो गैस एंड लिक्विड होता है, और वही पूछा है डिस्पर्सिंग मीडियम. दो होते हैं कोलॉइड में, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं बैच में. ठीक है, चैप्टर जब हम पढ़ते हैं सारी चीजें डिस्कस होती है. ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी मैं यहाँ पे करूंगा क्वेश्चन का, कहां से पूछ रहा है यूपीएससी क्वेश्चन, कैसे पूछ रहा है, आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट की. नॉट अबाउट साइंस, ये तो मैं सीडीएस 2 2024 का बता रहा हूँ. सीडीएस 1 2024 में मेरे क्वेश्चन आए, ऑल्दो साइंस उसमें बहुत कम कर दी थी. ठीक है, 12-13 क्वेश्चन होंगे इनके ऐसे जो डूएबल होंगे, बट उसमें मैं बताऊंगा वही लोग अच्छा कर पाए हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप समझ लो कि साइंस तो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए डिफिकल्टी रही है सीडीएस 1 2024 के लिए. बट अभी क्या हुआ है, अभी सीडीएस 2 2024 में साइंस उन्होंने इजी दी. और इफ यू आस्क माय स्टूडेंट्स, मैंने भी उनको यही सेम चीजें बोली हैं कि साइंस अगर 1 में सीडीएस 1 2024 में अगर उन्होंने डिफिकल्ट डाली है, 2 में आपको इजी मिलेगी. वी आर होपिंग दैट यूपीएससी अपने एनसीईआरटी वाले उस पे आएगा, और वही हुआ. देखो वही सेम चीजें, आप 16 क्वेश्चन पढ़ना जरा. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, देखो यहाँ नोट्स में ये एक चैप्टर का लाइन हुआ. ठीक है, उसके बाद हीलियम इज कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब. अभी इलेक्ट्रिक बल्ब वाला कहां से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन और आर्गन यूज होती है. ये ऑप्शन एक्चुअली नॉट करेक्ट है. ठीक है, आगे देखो, ऑक्सीजन यूज्ड टू बर्न रॉकेट इन फ्यूल. ऑब्वियसली बात है, कोई भी बर्निंग चीज है. अगेन कॉमन सेंस, हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के अंदर पढ़ते हैं, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लगती है, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग हो नहीं सकती. ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन गैसेस फॉर्म और रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग. ये भी देख लो, ये भी अलग चैप्टर है. ये तीनों अलग चैप्टर की लाइनें हैं, यूपीएससी ने मर्ज करके दे दी. अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू. जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आपको ये नोट्स नहीं पता है ना, अगर आपको ये रिवाइज नहीं है अच्छे से, जो एक्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी लाइंस क्लियरली देख सकते हो. ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है. ये नोट्स में क्लास में बनाता हूं, मैं इसी फॉर्मेट में बनवाता हूं. ठीक है, ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी का बुक है उसमें अलग लैंग्वेज लिखी. देखो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूपीएससी को एनसीईआरटी की लैंग्वेज पसंद है, इस चीज का ध्यान रखो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 आइसोटोप्स एंड एलिमेंटल क्लोरीन. अब एक चीज मैं बताऊं, यूपीएससी भी गलती करता है. क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, सी फॉर कार्बन होता है. वो तो चलो दे डोंट कंसीडर सी फॉर क्लोरीन, सी फॉर, अल्टीमेटली कायदे से जो है उनको इस तरीके से लिखना चाहिए था. ठीक है, इस तरीके से 35 ऐसे होना चाहिए था, बट चलो नेवर माइंड, यूपीएससी आल्सो मेक मिस्टेक्स. ठीक है, बट नेवर माइंड, क्वेश्चन करेक्ट है. ये कैसे, कहां से आया, ये देखो भाई, आइसोटोप वाले से दोबारा पूछा. एक ही चैप्टर से दो तरह के सवाल पूछे गए. ये भी अल्टीमेटली आपको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, मैं साफ बता दूं. डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लो. ठीक है, अब एक और चीज देखो, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग. मैंने भी मैच द फॉलोइंग एक दिया था एक टेस्ट में.
प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, देन ब्लीचिंग पाउडर, बाकी जिप्सम और लाइम वाटर। अब ये सब चीज़ें, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कि सर ये तो नहीं है इसमें, अरे भैया नोट्स में है ये सारी चीज़ें, इसके भी क्वेश्चन कराएं। जब इतना कुछ डिटेल पढ़ा है, जब क्वेश्चन मैच करता है, जब बाकी यूट्यूब में हल्ला मचा ना कि हमारे से क्वेश्चन आया, हमारे उससे क्वेश्चन आया, इसे कहते हैं क्वेश्चन आना लाइन बाय लाइन, ठीक है। मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा तुम्हें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये देख लो, द फेनोमेनन रेनबो तो यूपीएससी को पता नहीं क्यों इतना पसंद आ गया है। पिछली बार एनडीए में डाल दिया था, ठीक है, इस बार सीडीएस में डाल दिया, ठीक है। ये देख लो, टू क्या पूछा, रेनबो फॉर्मेशन। अब कौन सा पूछा सर, प्राइमरी या सेकेंडरी? अरे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ही पूछा होगा यार, सेकेंडरी होता तो मेंशन होता है, यहाँ पर सेकेंडरी है, ठीक है। अगेन कॉमन सेंस। क्या पूछा है, इन्वॉल्व क्या होता है इसका, सिंगल रिफ्रैक्शन नहीं, टू रिफ्रैक्शन होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ बिल्कुल, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन नो, बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें भी ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सर कौन सा करना चाहिए भाई, रिफ्रैक्शन भी होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेटर ऑप्शन है। अगेन इसमें कंपटीशन पता क्या था, ये तो एलिमिनेट हो गया, चलो ये तो समझ में आता है। अब इन दोनों में क्या चूज करना है, इन दोनों में तो वही चूज करोगे ना जो बेटर है। वन इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, होता है, पर क्या रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो भी तो होता है। अगर यहाँ लिखा होता ना वन रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब ये गलत बन जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगेन लॉजिक थोड़ा सा और कुछ नहीं है, बैच में देखो मैं बताता हूँ क्या चीज बात होती है। जब आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, पढ़ना इज अ वन थिंग, सिलेबस कंप्लीशन इज अ वन थिंग। आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे एक टाइम पे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, कुछ एबिलिटी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, वो चीज मेन है उसके अंदर, ठीक है। बिकॉज आप ये समझो, आपका कंपटीशन नए वालों के साथ तो है ही है, आपका कंपटीशन उनके साथ भी जो 6-8 महीने, 1-1.5 साल से पेपर दे रहे हैं, कंटिन्यूसली बैक टू बैक निकाल रहे हैं, उनके साथ भी है। उनकी रीजनिंग एबिलिटी आपसे ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी पेपर को क्लियर करने के मामले में, तो आपको भी उस लेवल तक पहुंचना है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लो, देख लो, which among the following hormone inhibits the growth activity in plants? लो, which of the following is not associated with the growth of the plant? और क्या चाहिए भाई, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है, डायरेक्ट इसे बोलते हैं। और ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, ये नहीं कि अपनी ऐप या वेबसाइट पे या ग्रुप में भेज दिए 50 टेस्ट और बोला कि 50 टेस्ट करवा दिए। ऐसे टेस्ट करवाओ जो जेन्युइनली रेलेवेंट हो, तो वो चीज मैं उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। कि ऐसे टेस्ट होंगे जो जेन्युइनली आपको हेल्प करेंगे। अभी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। लो ये देख लो, ऑर्डर वाला ही दिया हुआ है। अब सोचो जब बच्चा इस लेवल पे टेस्ट दे रहा है ना, टेस्ट सीरीज जब इस लेवल की टेस्ट सीरीज है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और चेक करते रहो, विच ऑफ द ऑर्गेनिक एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। अब लाइन देखना, कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, लाइसोसोम्स, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। और क्या चाहिए भाई, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है। नेक्स्ट लो, प्रेसबायोपिया क्वेश्चन, प्रेसबायोपिया लो, सीधा क्वेश्चन, ओल्ड एज में आता है, सिलेरी मसल वीक होती है, ऐसा नहीं है कलर में अलग होता है, वो कलर नहीं होता उसके अंदर, ओल्ड एज में आता है, बिल्कुल सही है, बाइफोकल लेंस लगता है, बिल्कुल सही है। सो 2 and 3 ऑप्शन डी। You can now download the SSB SureShot app from Google Play Store to access online courses related to SSB, personality development, and written exams like NDA, CDS, FCAT, and plenty of other preparation material. For a limited time period, you can apply the coupon code SureShot20 to get a flat 20% discount on all the courses. Hurry up and become a part of the SureShot family.